Today we are going to learn the new supplementary chapter 5th and its name is the Happy Prince. Really students, this is a very nice lesson. As you are got emotional and you can learn the moral from this lesson, that how and what the true love is called. Okay, so here the Happy Prince means the story is very, we can say that moral is inside inculcated too much. So let's see the poem, the chapter Happy Prince. It is a supplementary chapter from the book Moments. It is written by Oscar Wilde. So what the poem क्यों poem आ रहा है पता नहीं, चलो supplementary. What the author is saying here, let's see. Author क्या बोल रहा है? You know that before starting the chapter, always there is an introduction about the story, that what is given inside the story. So let's see. The Happy Prince was a beautiful statue. He was covered with gold. He had a sapphires for eyes and a ruby in his sword. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? Here, Happy Prince is not a person. It is a statue of a person. What is students? And the statue is covered with gold. Okay, his eyes are studded with sapphires and in his sword there is a ruby. So all the gold, all the wealth he is having, then also why he wanted to part this wealth to someone else. And how the Happy Prince become emotional, who helped the Happy Prince, what they had did. So this is all is given in this chapter. So give attention because this is a very nice story. High above the city, now I am going to start the chapter. High above the city, on a tall column, stood the statue of the Happy Prince. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes he had two bright sapphires and a large red ruby glowed on his sword hilt. One night there flew over the city a little swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. All day long he flew, and at night time he arrived at the city. Where shall I put up? He said. I hope the town has made preparations. Then he saw the statue on the tall column. I will put up there, he cried. It is a fine position with plenty of fresh air, so he alighted just between the feet of the Happy Prince. I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked around and he prepared to go to sleep. But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. What a curious thing, he cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. Then another drop fell. What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? He said. I must look for a good chimney pot, and he determined to fly away. But before he had opened his wings, a third drop fell, and he looked up and saw. Ah, what did he see? The eyes of the Happy Prince were filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. Who are you? He said. I am the Happy Prince. Now the story, students. Here, above the city, at the high column, there is a statue of the Happy Prince. It is gilded with gold leaves, means fine gold, and the design is made over it, that is of the leaves. His eyes are studded with two bright sapphires, and in his sword there is a ruby. Now, one night what happened? That one swallow is a bird, it is a little bird. So one swallow was flying over there, and he thought that actually his friends went to the Egypt. उसके जो फ्रेंड्स थे वो इजिप्ट जा चुके थे 6 weeks बिफोर, बट ये जो स्वैलो है वो रह गया. तो उसने भी सोचा कि अभी मेरे फ्रेंड्स तो यहाँ पे है नहीं, तो मैं भी इजिप्ट चला जाता हूँ. तो अभी वो भी इजिप्ट चला गया, और बाद में उसको जब समझ में आया कि अभी मैं ये नाइट के लिए मुझे यहाँ पे शेल्टर लेना पड़ेगा, तो वेयर आई शुड कीप माई सेल्फ, मैं कहाँ पे रहूँ. तो उसको वो हैप्पी स्टैचू का प्रिंस दिखा. उसको ऐसा लगा कि यस, दिस इज अ वेरी Happy statue, means Happy Prince का statue दिखाई दिया, and he thought that this is a very nice place for me. Also the fresh air is coming outside, so it is a nice place for today's shelter. So उसने Happy Prince के 2 feet के बीच में वो वहाँ पे रेस्ट करने लगा.
जैसे ही वो सोने की कोशिश कर रहा था, उसको एक पानी का ड्रॉप उसके ऊपर गिरा। उसको ऐसा लगा कि उसने स्काई में देखा, द स्काई इज वेरी क्लीन, स्टार्स आर ट्विंकलिंग, देन वेयर द ड्रॉप ऑफ वाटर इज कमिंग फ्रॉम, वो सोचने लगा। फिर दूसरा ड्रॉप गिरा, उसको लगा ये क्या है, इतना बड़ा स्टैचू है, वो अगर रेन को ही स्टॉप नहीं कर सकता तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। तो उसको ऐसा लगा कि एक चिमनी ऊंचाई पे थी, वहाँ पे मैं जाके बैठता हूँ ताकि वहाँ पे बारिश भी नहीं आए। जैसे ही वो उड़ने गया, उसका थर्ड ड्रॉप उसके ऊपर पानी का गिरा। उसने जैसे ही ऊपर देखा तो वो हैप्पी प्रिंस था, उसकी आंखों में से वो आंसू निकल रहे थे। ये देख के उसको थोड़ा सा शॉक लगा। फिर स्वैलो ने पूछा कि आप कौन हो? तो प्रिंस ने बोला कि मेरा नाम हैप्पी प्रिंस है। यहाँ तक स्टोरी समझ में आई, फिर आगे देखते हैं। Why are you weeping then? asked the swallow. You have quite drenched me. When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were. For I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. My courtiers called me the happy prince, and happy indeed I was. So I lived and so I died. And now that I am dead, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. Though my heart is made up of lead and I cannot choose but weep. अभी वो बोल रहे हैं कि I am a happy prince. मैं जब लाइव था, मैं जब जिंदा था, तो मैं एक बहुत ही हैप्पी प्रिंस की तरह जी रहा था, बहुत खुश था। दुख क्या होता है मैंने कभी देखा नहीं, मैं वैसे भी जिया, मैं वैसे भी मरा, मुझे कभी दुख क्या है उसके बारे में पता नहीं चला। इसीलिए मेरे जो मिनिस्टर्स थे वो मुझे हैप्पी प्रिंस के नाम से जानते थे। बट अभी मुझे उन्होंने मेरी डेथ के बाद उन्होंने मुझे ऊपर यहाँ पे अरेंज कर दिया, जहाँ से मैं ये पूरी दुनिया का दुख दर्द मुझे दिखता है, जिसकी वजह से मुझे दुख होता है। दैट इज व्हाई ही इज सेइंग आई एम ड्रेंच्ड, और इसलिए मैं दुखी हूँ। व्हाट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, सेड द स्वैलो टू हिमसेल्फ, ही वाज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स। उसने बोला कि मेरा हार्ट लीड का बना है, लीड इज अ मेटल, तो मैं मेरे हार्ट से तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो फर्म है, बट मेरी आंखों में से पानी तो मैं रो तो सकता हूँ ना। ऐसे हैप्पी ने आंसर दिया। स्वैलो बोलता है कि तुम पूरे सॉलिड गोल्ड के नहीं बने हो? तो उसने बोला नहीं, मैं पूरे सॉलिड गोल्ड का नहीं है, सिर्फ ऊपर से ही गोल्ड का एक लेयर कवर किया हुआ है। तो स्वैलो जो है वो बहुत ही रिस्पेक्ट से प्रिंस के साथ बात कर रहा है। फार अवे continued the statue in a low musical voice. Far away in the little street there is a poor house. One of the window is open and through it I can see a woman seated at a table. Her face is thin and worn, and she has coarse red hands, all pricked by the needle, for she is a seamstress. She is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maids of honor. To wear it the next court ball, in a bed in the corner of the room, her little boy is lying ill. He has a fever and is asking his mother to give him oranges. His mother has nothing to give him but river water, so he is crying, swallow, swallow, little swallow, will you not bring her ruby out of my sword hill? My feet are fastened to this pedestal and I cannot move. फिर हैप्पी प्रिंस ने उसको स्टोरी बताना स्टार्ट किया। उसने बोला कि काफ़ी दूर, यानी मुझे यहाँ से दिख रहा है कि बहुत दूर है वो जगह, वहाँ पे एक लेडी है, वो अपने सिलाई मशीन के ऊपर कुछ एक जो प्रिंसेस है उसका गाउन जो है वो सिल रही है। द लेडी वॉज वेयरिंग द गाउन ऑफ द प्रिंसेस, और वो जो प्रिंसेस है वो नेक्स्ट डे पे बॉल मीन्स डांस, तो डांस के लिए उसको गाउन पहनना है, इसलिए वो उसमें बिजी है गाउन सिलने में। उसका एक छोटा बेटा है जो बीमार है, जो बेड के ऊपर सोया हुआ है। उसके बेटे ने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे ऑरेंजेस खानी है, बट मम्मी कहाँ से लेती ऑरेंजेस? वो सिर्फ उसके पास पानी ही था, बराबर, पानी के अलावा कुछ था नहीं। बच्चा बोल रहा था कि मुझे पानी नहीं, मुझे ऑरेंजेस खानी है, क्योंकि वो बीमार था। प्रिंस ने उसको स्वैलो को बोला कि स्वैलो स्वैलो, मेरे फीट तो यहाँ पे स्टक किए हुए हैं, इसलिए मैं मूव नहीं हो सकता, बट तू तो उड़ सकता है ना, तो मेरी आंखों में से एक सफ़ायर निकाल के तू, सफ़ायर इज अ क्या होता है, जेमस्टोन होता है, तो ये जो वो ब्लू कलर का होता है, तो मेरी आंखों में से एक सफ़ायर निकाल के वो लेडी को दे के आ, ताकि वो उसको बेच के कुछ पैसे कमाएगी और अपने बेटे को जो ऑरेंजेस खिलानी है वो खिला पाएगी। फिर आगे क्या होता है देखो, आई वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वैलो,
My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers. So soon they will go to sleep. The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. The boy is so thirsty and the mother said, I don't think I like boys, answered the swallow. I want to go to Egypt. But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. It is very cold here, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. Thank you, little swallow, said the prince. प्रिंस ने उसको बोला कि swallow तो मेरे लिए ये काम नहीं करेगा. swallow बोलता है नहीं, मुझे ह्यूमन बीइंग से क्या करना है, मेरे फ्रेंड्स इजिप्ट गए हैं और मुझे भी वहाँ पे जाना है, क्योंकि वो लोग अभी नाइल रिवर के ऊपर मस्त एंजॉय कर रहे हैं, लोटस फ्लावर्स के ऊपर उड़ रहे हैं और अभी वो सोने जा रहे हैं, तो मैं भी सो जाऊँगा. तो प्रिंस बोलता है कि मेरा आज रात को यहाँ पे रुक रहा है और एक रात के लिए तो मेरा मैसेंजर बन. स्वैलो बोलता है कि ओके, कोई बात नहीं. तो प्रिंस जो है उसको बोलता है थैंक यू. द स्वैलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस सॉर्ड एंड फ्लू विथ इट इन हिज बीक ओवर द रूफ ऑफ द टाउन. मैंने तुमको सफायर बोला स्टूडेंट, सफायर नहीं है, वो जो तलवार के अंदर रूबी होता है रेड कलर का. तो प्रिंस उसको बोलता है कि वो रूबी निकलना है. तो जो स्वैलो है उसने वो रूबी निकाला और वो टाउन की ओर उड़ते चला गया. देन व्हाट हैपेंस, ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टॉवर वेयर द व्हाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड. ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ द डांसिंग. अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द balcony with a lover. I hope my dress will be ready in time for the state ball. She said, I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy. He passed over the river and saw the lanterns hanging on the mast of the ships. At last he came to the poor woman's house and looked in. The boy was tossing feverishly on his bed and the mother had fallen asleep. She was so tired as he hoped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wing. How cool I feel, said the boy. I must be getting better, and he sank into the delicious slumber. Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. That is because you have done a good action, said the prince. And the little swallow began to think and then fell asleep. Thinking always made him sleepy. अभी देखो what happened. वो जो swallow है, he was ready to reach that ruby to the poor woman's house. तो जैसे ही उसने उड़ना स्टार्ट किया, सबसे पहले वो प्रिंसेस के जो उसका पैलेस था वहाँ से उड़ा. तो जो प्रिंसेस है वो अपने बॉयफ्रेंड को बोल रही है कि मैंने वो एक लेडी है, सीम्स्ट्रेसेस मीन्स अपने उसको टेलर बोलेंगे, उसको मैंने ये सिलाई के लिए गाउन दिया है और जो फ्लावर्स है वो एम्ब्रॉयडरी करने में है, बट वो लेडी बहुत लेजी है, कल मुझे वो गाउन चाहिए. वो सुन रहा था, वहाँ से उड़ गया. फिर वो शीप जो है उसको ऐसे शीप जहाँ पे रखते हैं पानी के अंदर वो जगह दिखी. फिर वहाँ से उड़ते उड़ते वो एक पुअर वुमन के घर पे पहुँचा. वो जो लेडी है वो इतनी थक चुकी थी कि वो सो गई. बच्चा जाग रहा है, उसको घूमता रहे. स्वैलो ने वो रूबी जो है वो वुमन के वहाँ पे उसके जो काम करने के सारे मटेरियल रखा हुआ था, उसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है थिम्बल. थिम्बल का मीनिंग होता है कि अ मेटल और द प्लास्टिक कैप विथ क्लोज द एंड वॉन्ट टू प्रोटेक्ट द फिंगर एंड पुश द नीडल इन स्विंग. जब अपनी सिलाई काम करते हैं तो वो फिंगर में पहना जाता है ताकि हमें नीडल ना लगे. तो वो जो थिम्बल है उसके पास उसने वो रूबी रखा और वहाँ से उड़ के वो बॉय के ऊपर से उड़ा, जिसकी वजह से बॉय को कूल एयर लगी. उसको लगा कि हाउ कूल द एयर इज, इसलिए वो भी जैसे उसको ठंडी हवा लगी वो भी सो गया. वहाँ से वो जो स्वैलो होता है वो वापस आता है, प्रिंस को बोलता है कि मैंने काम कर दिया, अभी मुझे इतनी ठंडी नहीं लग रही है, मैं आई एम फीलिंग वार्म. हैप्पी प्रिंस उसको बोलता है कि तुझे अच्छा लगेगा ही क्योंकि तूने अच्छा काम किया है. अभी वो जो स्वैलो है वो भी सो जाता है और प्रिंस भी सो जाता है. फिर क्या हुआ देखो. When day broke, he flew down to the river, had a bath. Tonight I go to Egypt, said the swallow. And he was in high spirits at the prospect. He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple. When the moon rose, he flew back to the happy prince. Have you any commission for Egypt? He cried. I am just starting. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you stay with me one night longer? अभी देखो, मॉर्निंग हुई,
स्वैलो जो है वो मस्त रिवर में बात लेके आया, सारे मॉन्यूमेंट्स को वो विजिट करके आया, सब जगह पे घूम के आया। जैसे ही पूरे दिन उसने पूरी तरह से अच्छी तरह से एंजॉय किया, पूरी सिटी को देखा, जैसे ही शाम हुई वो स्वैलो के पास आ गया, वो हैप्पी प्रिंस के पास आ गया। हैप्पी प्रिंस ने उसको पूछा कि तू आज रात को निकलने वाला है स्वैलो? स्वैलो ने बोला यस। तो वो बोलता है प्रिंस बोलता है प्लीज स्वैलो आज की नाइट को रुक जाना। तो वो बोल रहा है आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, आंसर द स्वैलो। स्वैलो बोलता है कैसे रुकूं, कल तो मैंने तुम्हारी बात मानी थी, अभी तो मुझे इजिप्ट जाना है। फिर वो बोलता है स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ garret. He is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. His hair is brown and crisp, and his lips are red as a pomegranate. He has a large and dreamy eyes. He is trying to finish a play for the director of the theatre, but he is too cold to write anymore. There is no fire in the grate, and hunger has made him faint. I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. He asked if he should take another ruby to the younger playwright. Alas, I have no ruby now, said the prince. My eyes are all that I have left. They are made up of rare sapphires, which were brought out of India 1,000 years ago. He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said. Now, garret means a small dark room at the top of the house, जहाँ पे हम लोग उसको स्टोर रूम भी बोल सकते हैं। हैप्पी प्रिंस बोल रहा है स्वैलो को कि स्वैलो एक नाइट को रुक जाए, क्योंकि मुझे दूर यहाँ पे एक यंग पर्सन दिखाई दे रहा है, ही एज अ प्ले राइटर, और उसको उसके थिएटर के ओनर के लिए एक नाटक लिखना है, बट वो लिख नहीं पा रहा है। वो बहुत ही वीक है क्योंकि उसको भूख लगी है, ठंडी भी बहुत है, ठंडी की वजह से वो लिख नहीं पा रहा है। उसके जो लिप्स है वो एकदम रेड हो चुके हैं पोमोग्रेनेट की तरह, क्योंकि उसको ठंड लग रही है। तो तू उसको हेल्प कर, मेरे पास जो भी था एक रूबी। तो स्वैलो बोलता है ओके मैं हेल्प कर देता हूँ आज की रात, वैसे भी तू अच्छा काम कर रहा है, यू आर अ वेरी गुड पर्सन एंड विद गुड हार्ट, तो मैं तुम्हारी काम हेल्प कर दूंगा, ऐसे स्वैलो उसको बोलता है। व्हेन स्वैलो वाज सेइंग दिस, फिर वो स्वैलो बोलता है कि गिव मी अनदर रूबी, कि मुझे दूसरा रूबी दो। हैप्पी प्रिंस बोलता है आई डोंट हैव द रूबी, ओनली आई एम हैविंग वन, नाउ आई एम हैविंग द सफायर्स दैट आर स्टडेड इन माई आईज, कि मेरे पास सिर्फ वो अभी सफायर है, मेरे आईज में है। तो स्वैलो बोलता है तू अगर वो सफायर दे देगा तो तू देख में से पाएगा। हैप्पी प्रिंस बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे देख के क्या करना है, मैं तो दुख ही देखता हूँ, ओनली आई एम वॉचिंग द सैडनेस दैट आई डोंट वॉन्ट। इसलिए वो जो एक सफायर है वो बोलता है कि ये सफायर तो एक आँख में से निकाल ले, और वो जो इंसान है प्ले राइटर उसको दे दे। उसको जैसे ही वो ज्वेलरी शॉप में उसको बेच देगा, उसको जो भी पैसे मिलेंगे उससे वो फायरवुड खरीदेगा, उसके जो प्ले राइटर का जो भी चीज़ है वो उसको प्ले राइटर को जो लिखना है मीन्स उसको खुद को थिएटर के ओनर के लिए वो लिख के वो भी दे देगा। ओके, तो डियर प्रिंस सेड द स्वैलो आई कैन नॉट डू दैट एंड ही बिगेन टू विप। प्रिंस स्वैलो बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता जैसे मैंने तुमको बोला, क्योंकि वो अंधा हो जाएगा। देखो मैं पहले पढ़ती हूँ आगे। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस डू एज आई कमांड यू। सो द स्वैलो प्लक्ड आउट द प्रिंस आईज एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स garret. It was easy enough to get in as there was a hole in the roof. Through this he darted and came into the room. The young man had his head buried in his hands, so he did not hear the flutter of the bird's wings. When he looked up, he found the beautiful sapphire lying on the withered violets. अभी देखो, स्वैलो ने बोला कि मैं ये काम नहीं करूँगा, तो प्रिंस रोने लगा, करना मेरे लिए। तो स्वैलो बोलता है कि ऐसा करने से आपकी आंखें अंधे हो जाओगे आप। देन प्रिंस बोलता है कोई बात नहीं, ओके। तो जो सफायर जो होता है प्रिंस की आंखों में, स्वैलो उसको निकाल के वो मैन की वहाँ पे घर पे हो जाता है। उसका घर वो गैरेट के अंदर था, टॉप फ्लोर पे, इजीली वो अंदर जा सकता था क्योंकि रूम पे होल था। वो जो मैन था वो ऐसे करके सोया हुआ था, उसका ध्यान नहीं कि कब ये स्वैलो अंदर आया और उसने वो सफायर रख दिया और वो चला गया। जैसे ही उसने वो रख दिया वो वहाँ से चला जाता है, तो वो देखता है कि वहाँ पे तो एक ब्यूटीफुल सफायर पड़ा हुआ है। वो देख के वो बहुत खुश हो जाता है। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ही क्राइड, दिस इज फ्रॉम सम ग्रैंड एडमायरर, ग्रेट एडमायरर, नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी। फिर वो खुश हो गया प्ले राइटर, बोलता है कि अभी मेरे पास पैसे हैं, मैं प्ले राइटर भी प्ले भी लिख सकता हूँ,
और मैं खाना भी खा सकता हूँ, फायरवुड भी लेके आता हूँ, इसलिए वो खुश है. The next day the swallow flew down to the harbour. He sat on the mast of the large vessel and watched the sailors working. I am going to Egypt, cried the swallow, but nobody minded. And when the moon rose, he flew back to the happy prince. दूसरे दिन फिर से मॉर्निंग हुई. स्वैलो जो है वो इस बार हार्बर पे गया. हार्बर इज द प्लेस वेयर द शीप आर गैदर्ड, जहाँ पे एक सारे समुद्र के यहाँ पे एक सारे शीप इकट्ठा होते हैं. पोर्ट जिसको तुम लोग बोलते हो उसको हार्बर पे बोलते हैं. तो दूसरे मॉर्निंग में वो जो स्वैलो है वो हार्बर पे गया. वो देखा, उसने जोर से चिल्लाया स्वैलो कि आई गो टू इजिप्ट. तो किसी को सुना ही नहीं दिया, क्योंकि उनको पता है बर्ड कुछ बोलते हैं हमको समझ में नहीं आता है, इसीलिए उसने वो आवाज़ सुनी और ओके. तो शाम हुई, वो फिर से हैप्पी प्रिंस के पास वापस आ गया. आई कम टू बीड यू गुड बाय, ही क्राइड. स्वैलो बोला कि अभी मैं तेरे पास आया हूँ तुझे गुड बाय बोलने के लिए, तो मेरा गुड बाय तू एक्सेप्ट कर. स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर. अभी हैप्पी प्रिंस ने फिर से उसको बोला कि एक नाइट के लिए रुक जाना स्वैलो प्लीज, मेरे लिए इतना नहीं कर सकता. इन द स्क्वायर इट इज़ अ विंटर, आंसर द स्वैलो, एंड द स्नो विल सून बी हियर. In Egypt, the sun is warm on the green palm trees, and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them. Swallow बोलता है कि नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पे विंटर आने वाला है, तो यहाँ पे स्नोफॉल होगा, तो मुझे ठंडी में मैं नहीं ले सकता, मुझे इजिप्ट जाना है. इजिप्ट में इस समय वार्म सन होगा, पाम ट्रीज के ऊपर हम लोग बैठेंगे, क्रोकोडाइल जो है वो लेजीली पड़े हैं, तो मुझे वहाँ जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं रुकना है. In the square below, said the happy prince, there is a stand the little match girl. She has let her matches fall in the gutter and they are all spoiled. Her father will beat her if she does not bring home some money, and she is crying. She has no shoes and stockings and her little head is bare. Pluck out my other eye and give it to her, said, and her father will not beat her. I will stay with you one night longer, said the swallow, but I cannot pluck out your eye. You would be quite blind then. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. So he plucked out the prince's other eye and darted down with it. He swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing. Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. No, little swallow, said the poor prince, you must go away to Egypt. No, I will stay with you always, said the swallow, and he slept at the prince's feet. अभी क्या हुआ देखो, स्वैलो उसको बोलता है कि मैं तुझे गुड बाय बोलने के लिए आया हूँ. तो प्रिंस बोलता है कि प्लीज़ वन नाइट के लिए स्टे करना ना तू, और यहाँ पे मुझे दूर एक मैच स्टिक बेचने वाली गर्ल दिखाई दे रही है, उसकी मैचेस पूरे गटर में गिर रही है. उसके फादर अगर ये देखेंगे तो उसको बहुत मारेंगे, तो तू एक काम कर, मेरी आँख में एक सफ़ाई है उसको निकाल के तू वो लड़की को देखे. स्वैलो बोलता है नहीं, अगर मैं इसको भी निकालूंगा तो तू पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाएगा प्रिंस, ऐसा मैं नहीं कर सकता. प्रिंस बोलता है कि ये मेरा कमांड है, तुझे करना पड़ेगा. तो स्वैलो के पास कुछ ऑप्शन नहीं होता है, वो दूसरा भी वो जो सफ़ायर होता है वो निकाल लेता है, और वो लेडी, वो जो लड़की होती है छोटी सी, उसके हाथ में वो जो सफ़ायर है वो डाल देता है. लड़की देख के खुश हो जाती है, अरे भाई ये क्या है मस्त, इसलिए वो दौड़ के अपने फादर के पास चली जाती है. स्वैलो उसके पास वापस आता है. नाउ द प्रिंस इज ब्लाइंड, अभी प्रिंस को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है. अभी हैप्पी प्रिंस उसको बोलता है कि नाउ यू कैन गो टू इजिप्ट, अभी तू जा सकता है. स्वैलो बोलता है अभी मैं नहीं जाऊँगा, अभी मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूँगा. प्रिंस बोलता है क्यों, क्योंकि तू अभी ब्लाइंड हो गया है प्रिंस, तुझे कुछ दिखेगा नहीं, तुझे हेल्प कौन करेगा, अभी मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊँगा. आई विल स्टे हियर फॉर एवर, मैं यहीं पे रहूँगा, ऐसे स्वैलो उसको बोलता है. फिर ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंस शोल्डर एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन द स्ट्रेंज लैंड्स. फिर नेक्स्ट डे से वो जैसे कभी हार्बर पे जाता था, कभी रिवर पे जाता था, वो नहीं गया. वो प्रिंस के शोल्डर पे बैठ के उसको जो जो दिखाई देता है वो सब स्टोरीज प्रिंस को बताया करता था, जिसकी वजह से प्रिंस को बहुत ही अच्छा लगता था. Then, dear little swallow, said the prince, you tell me of the marvelous things, but more marvelous than anything is suffering of men and women. There is no mystery so great as misery. Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses, while the beggars were sitting at the gates. He flew into dark lanes and saw the white faces of the starving children looking out listlessly at the back streets. Under the archway of the bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm.
How hungry we are, they said. You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. Then he flew back and told the prince what he had seen. I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and take it to the poor. The living always think that gold can make them happy. अभी देखो क्या हुआ. स्वैलो जो है वो सारी बातें प्रिंस को बताता था उसके शोल्डर पे बैठ के. प्रिंस बोल रहा था कि जो लिविंग क्रिएचर्स है यानी हमारे जैसे ह्यूमन बींग्स, उनको वेल्थ का बहुत ही ग्रीडीनेस होता है. उनको ऐसा लगता है, अट्रैक्शन होता है, उनको ऐसा लगता है कि वेल्थ उनको हैप्पी कर सकती है. इसलिए तो एक काम कर, मेरे बॉडी पे जितने भी ये छोटे छोटे लीव्स है गोल्ड के, एक एक लीव्स जितने भी गरीब है उनको दे दिया. स्वैलो ने चेकआउट करना स्टार्ट किया. वो गया. जो रिच लोग थे वो खुश थे अपने घरों में, जो पुअर थे वो बहुत ही दुखी थे. स्वैलो ने देखा कि दो छोटे बच्चे हैं वो एक दूसरे को ऐसे गले मिल के खड़े हैं ताकि वो ठंडी से बच सके. वॉचमैन ने उनको बोला कि डोंट स्टे हियर, गो फ्रॉम देयर. तो उन्होंने बोला कि हम लोग बहुत भूखे हैं, हमको खाना नहीं मिल रहा है, ठंडी बहुत है, हम कहाँ जाए. और वॉचमैन ने उनको चिल्लाया, इसलिए वो वहाँ से चले गए. तो जितने कुछ ऐसे फिर वहाँ से वो एक डार्क लेन यानी जहाँ पे गरीब स्लम एरिया है वहाँ पे गया. डार्क लेन मीन्स जहाँ पे स्लम एरियाज है वहाँ पे वो गया. उसने देखा कि वाइट बच्चे यानी गोरे गोरे बच्चे, बट वो भूखे हैं, रो रहे हैं क्योंकि उनको कुछ खाना है, उनको कुछ मिल नहीं रहा है. तो वो प्रिंस के पास आया और प्रिंस को बोला कि मैं इनको एक एक वो जो लीव्स है वो दे के आता हूँ. धीरे धीरे करके सारे लीव्स जो है वो खत्म हो गए. उसके गोल्डन के लीव्स थे ना, मैंने तुमको बोला था, उसका जो हैप्पी प्रिंस का जो बॉडी था इट स्टार्टेड विथ गोल्डन लीव्स. तो एक एक लीव्स तोड़ तोड़ के वो जो स्वैलो है वो सबको दे के है. अभी लीव्स भी खत्म हो गई, अभी कुछ है ही नहीं. अभी क्या होता है देखो. देन leaf after leaf of the gold, fine gold, the swallow picked off until Happy Prince looked quite dull and grey. Leaf after leaf of the fine gold he brought to the poor, and the children's faces grew rosier. They laughed and played in the street. We have bread now, they cried. उसने एक एक लीफ करके वन आफ्टर द अदर सबको दे दिया. अभी वो दो बच्चे जो दो चिल्ड्रन थे वो भी खुश हो गए. उनके फेस रोजियर मीन्स हैप्पी. उन्होंने बोला कि अभी हमें खाना मिलेगा, इसलिए वो खुश हो गए. और जो प्रिंस था वो डल हो गया क्योंकि उसका सारा गोल्ड जो था वो निकल चुका था. देन द स्नो केम. आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट. पहले स्नो आया, फिर फ्रॉस्ट गिरना स्टार्ट हो गया. द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर. फिर सारा जो स्ट्रीट्स था लंदन के स्ट्रीट्स वो पूरे सिल्वर की हो गई यानी पूरा स्नो उनके ऊपर वो प्लेसेस को कवर कर दिया. एवरीबडी वेंट अबाउट इन पर्स एंड द लिटिल बॉयज वर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस. अभी सब लोग जो है वो घरों के अंदर थे. कुछ बॉयज ने वो स्कारलेट कैप पहनी थी और अपने आप को कवर करने के लिए फर वाले उन्होंने वार्म क्लोथ्स पहने थे और वो लोग स्केटिंग कर रहे थे आइस के ऊपर. द पुअर लिटिल स्वैलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस. He loved him too well. He picked up the crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. But at last he knew that he was going to die. He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. Goodbye, dear prince, he murmured. Will you let me kiss your hand? I am glad that you are going to Egypt at last, little swallow, said the prince. You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you. It is not to Egypt that I am going, said the swallow. I am going to the house of death. Death is the brother of sleep, is he not? And he kissed the happy prince on the lips and fell down dead at his feet. अभी क्या हुआ है? हैप्पी प्रिंस ऐसे उन्होंने काफ़ी लोगों की हेल्प की. अभी विंटर सीजन आ गया. अभी स्वैलो ने पहले ही बोला था कि विंटर सीजन इज अनबेरेबल फॉर मी, कि विंटर में मैं नहीं रह सकता. बट उसने प्रॉमिस किया था कि वो अभी हमेशा हैप्पी प्रिंस के साथ रहेगा. ठंडी बढ़ती गई. स्वैलो जो है वो एकदम ठंडी उसको लगने लगी. फिर एक दिन ऐसा आया उसको स्वैलो को पता चला कि वो मरने वाला है. इसलिए वो हैप्पी प्रिंस के पूरी उसने स्ट्रेंथ लगाई अपने विंग्स की और हैप्पी प्रिंस के शोल्डर पे बैठ गया. जैसे ही वो हैप्पी प्रिंस के शोल्डर पे बैठ गया तो वो हैप्पी प्रिंस को बोलता है कि प्रिंस अभी मैं गुड बाय बोलने के लिए आया. हैप्पी प्रिंस उसको बोलता है कि ओ वेरी नाइस, कि तू गुड बाय बोल रहा है यानी तू अभी इजिप्ट जा रहा है. स्वैलो बोला नहीं, अभी मैं हाउस ऑफ डेथ यानी मैं मरने जा रहा हूँ. तो प्रिंस बोलता है क्यों, क्या हुआ? कि अभी ठंडी बहुत है, मैं जी नहीं सकता, तो मैं मरने जा रहा हूँ, तो मुझे तुम्हारे हैंड पे किस करना है. हैप्पी प्रिंस बोलता है एज आई लव यू, कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ तो तू मेरे लिप्स पे किस कर. ऐसे हैप्पी प्रिंस स्वैलो को बोलता है.
स्वैलो ने हैप्पी प्रिंस के लिप्स पे किस किया और वो नीचे गिर गए, यानी वो मर गए, उसके पैरों में नीचे वो गिर गए। अभी देखो क्या होता है। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन। द फैक्ट इज दैट द लीडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट। Early the next morning, the mayor was walking in the square below in company with the town councillors. As they passed through the column, he looked up at the statue. Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. How shabby, indeed, cried the town councillors, who always agreed with the mayor, and they went up to look at it. अभी देखो क्या हुआ। जैसे ही वो स्वैलो मर जाता है, वैसे ही स्टैचू के अंदर एक क्रैक होता है, आवाज आता है, और उसका हार्ट जो होता है लीड का, वो टूट जाता है। यानी कि वो जो स्टैचू है वो भी उसके हार्ट के 2 टुकड़े हो जाते हैं, यानी वो भी मर जाता है। दूसरे दिन वहाँ का जो मेयर होता है, तुमको होता है कॉर्पोरेशन में हेड मेयर होता है, वो अपने काउंसिलर्स के साथ वो स्क्वायर पे हैप्पी प्रिंस का स्टैचू होता है, वहाँ वो घूमता है, देखता है कि अरे, वो अपने काउंसिलर्स को बोलता है अरे ये स्टैचू बहुत शैबी हो गया है। नहीं, शैबी मीन्स डल एंड डर्टी, कि हाँ वो उसके जो, तुमको पता है जो हेड बोलता है वही उसके सर्वेंट्स बोलते हैं, तो उन्होंने हाँ हाँ बहुत ही शैबी हो गया है। अभी वो क्या बोलते हैं, द रूबी हैज फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, हिज आईज आर गॉन एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, सेड द मेयर। इन फैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन अ बेगर। अभी वो मेयर बोल रहा है कि उसका रूबी नीचे गिर गया है, सफायर उसके आंखों में नहीं है, गोल्ड स्टडेड भी नहीं है। अभी वो प्रिंस तो नहीं लग रहा है, पर बेगर की तरह लग रहा है, ऐसे स्वैलो सॉरी वो मेयर बोलता है। लिटिल बेटर देन बेगर, सेड द टाउन काउंसिलर्स, एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट। Continued the mayor, we must really issue a proclamation that birds are not to be allowed to die here. And the town clerk made a note of the suggestion. So they pulled down the statue of the happy prince, as he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university. फिर क्या बोलेगा? मेयर ने बोला कि अभी ये प्रिंस की तरह नहीं लग रहा है, वो स्टैचू जो है वो बेगर की तरह लग रहा है। और जब वो ऊपर चेक करते हैं तो उनको पता चलता है कि बर्ड भी वहाँ पे मरा हुआ है। फिर वो लोग प्रोक्लेमेशन निकालते हैं। प्रोक्लेमेशन मीन्स ऑर्डर, गवर्नमेंट का जो ऑर्डर होता है उसको प्रोक्लेमेशन बोलते हैं, कि बर्ड्स आर नॉट अलाउड टू फ्लाई नियर टू द स्टैच्यूज, कि बर्ड अलाउड नहीं है, ऐसा एक प्रोक्लेमेशन निकालो। फिर वहाँ का जो आर्ट यूनिवर्सिटी का आर्ट प्रोफेसर होता है वो आता है, स्टैचू को चेक करता है और वो बोलता है कि अभी ये स्टैचू ब्यूटीफुल नहीं है, ये यूजफुल नहीं है, उसको निकाल दो आप लोग। Then they melted the statue in the furnace. What a strange thing, said the overseer of the workmen at the foundry. This broken lead heart will not melt in the furnace. We must throw it away. So they threw it on the dust heap where the died swallow was also lying. फिर अभी वो स्टैचू को उन्होंने निकाल दिया वहाँ से, और तुमको पता है मेटल को फर्नेस के अंदर यानी सगड़ी के अंदर मेल्ट किया जाता है, क्योंकि स्टैचू मेटल का था। तो एक जादू हुआ वहाँ पे, ये जादू हुआ कि उसका जो पूरी बॉडी मेल्ट हो गई पर हार्ट मेल्ट नहीं हुआ। ये देख के वो लोग थोड़े शॉक हो गए कि ऐसे कैसे, बट उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने वो लीड का हार्ट लिया, कचरे में फेंक दिया, वो जो स्वैलो की डेड बॉडी थी उसको भी वहाँ पे फेंक दिया। डस्ट ऑफ हीप यानी जहाँ पे बहुत ही कचरा था वहाँ पे उसके ऊपर फेंक दिया। ब्रिंग मी द 2 मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी, सेड गॉड। फिर भगवान ने उसके मैसेंजर को बोला, ये सिटी में से 2 अच्छी चीज़ें को लेके आ। मैसेंजर को गॉड ने ऑर्डर दिया। अभी ये मैं पूरा रीड करते हुए, ब्रिंग मी द 2 मोस्ट प्रेशियस थिंग्स इन द सिटी, सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स, एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लीडन हार्ट एंड द डेड बर्ड। फिर एंजल यानी दूत, मैसेंजर ऑफ गॉड, उसको एंजल बोलते हैं अपने। एंजल ने वो सिटी में से 2 गुड थिंग्स लेके आए। एक तो उसमें स्वैलो जो बर्ड था उसकी डेड बॉडी, और हैप्पी प्रिंस का हार्ट। यू हैव राइटली चूजन, सेड गॉड, for in my garden of the paradise little bird shall sing forevermore, and in my city of gold the happy prince shall praise me. फिर वो बोलता है अपने एंजल को, बोलता है गॉड कि तूने बहुत अच्छा काम किया, वो बिल्कुल सही चीज़ें लेके आए। मेरे गोल्डन गार्डन में मुझे स्वैलो की ज़रूरत थी जो हमेशा के लिए गाना गाता रहे, और मेरे ये जो गार्डन है उसके अंदर मुझे ऐसा एक गोल्ड का स्टैचू चाहिए था जो हमेशा हैप्पी रहे। तूने बहुत अच्छा काम किया है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म हुई। मोरल क्या है इसका, देखो कि अगर हमारा हार्ट अच्छा होता है तो वी आर ऑलवेज आवर एंड इज ऑल्सो गुड। जैसे वो स्वैलो ने एंड में अच्छा काम किया, बराबर कि नहीं, एंड में अच्छा काम किया तो वो भी हेवन में गया। हैप्पी प्रिंस तो ऑलवेज हैप्पी था, वो भी एक अच्छा इंसान था, वो भी हेवन में गए। यानी वो दोनों इतने अच्छे थे कि वो गॉड के पास हमेशा के लिए फॉरएवर रहे।
ये इसका मोरल हुआ, यानी कि हमें लाइफ में हमेशा वी हैव टू डू द गुड थिंग्स, गुड डीड्स, गुड वर्क फॉर अदर्स. वी ऑलवेज हैव टू थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल. ये चैप्टर का मोरल था. आई होप तुमको चैप्टर समझ में आया होगा. मैंने क्योंकि पूरा हिंदी यूज किया है ताकि तुमको समझ में आए. वीक से वीक बच्चे को ये समझ में आया होगा कि मैंने क्या सिखाया. अभी इसके क्वेश्चन आंसर से थिंक अबाउट इट. ये तुम लोगों को पढ़ने हैं और लिखने भी हैं. मैंने हर एक लेक्चर में हर एक टीचर तुमको यही एम्फेसिस करती है कि भाई लिखो लिखो. तो यू हैव टू राइट. ओके, विथ दिस आई एम एंडिंग माई लेक्चर. बाय.